नमस्कार सबको, मैं हूं कश्मीरा स्वदास। आप सबका मॉकटेल डायरीज़ में स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इंसान से आप लोगों को मिलवाने के लिए ले आई हूं, जो हमें ये बताएंगे कि हमारे हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है। मैं बात कर रही हूं नॉर्थ गुजरात के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश ठक्कर सर के बारे में। तो आइए मिलते हैं उनसे। हेलो सर, कैसे हो हेलो। आप? बस ऑल वेल। आप बताइए कैसे है। बस एकदम बढ़िया। आपका मॉकटेल डायरीज़ में स्वागत है सर। थैंक सर यू फॉर आपके बारे में इनवाइटिंग। कुछ बताइए। सी आई एम ए cardiologist, interventional cardiologist. I have my one hospital in Mehsana and I ओके have a second hospital in Ahmedabad. And uh, my journey as a cardiologist started from 2003. ओके So when I was doing a job in one of the cardiac hospital, then at that time when I came to know that this is also a one good branch and this is the branch which serves life of the patient, so I got an interest in that, and then I started tracking this cardiology, and then I got admission in 2004, and then I pass out in 2008 as a DNB cardiologist. So I am a national board certified cardiologist, and it is one of the toughest exam of a cardiology. ओके And since last 15 years, I am settled in Mehsana. I stay both at the Mehsana and Ahmedabad, and recently in 2025 February, we have launched one more hospital in Ahmedabad that is also functional now. ओके सो ये दोनों हॉस्पिटल का नाम क्या है सर? मेहसाना का जो हॉस्पिटल है उसको गैलेक्सी हॉस्पिटल बोलते हैं, ओके which will be having a 10 years journey in this month only. And the Ahmedabad unit is Alpha Hospital. ओके एंड बोथ आर ओनली कार्डियक हॉस्पिटल और इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? Both the hospitals are multi-speciality hospital. ओके Though I am a cardiologist, but we have other specialties also in both the hospitals. ओके सो आपने ये कार्डियोलॉजी से क्यों चूज़ किया? मतलब डायरेक्टली आप ऐसा बोलना चाह रहे थे कि डायरेक्टली आप लोगों के दिल तक ही पहुंच जाओगे? See, after passing my MD, when I plan to settle down as a MD in my native place, I was working there in a trust hospital. Then when I worked there, I can see that there is a monotonous work post medicine. So then I thought, let me have something else in my career. ओके So I moved from my native place to one big cardiac institute, and then I work as a registrar over there, and then I got an interest in a cardiology, ओके and then I took admission in DNB cardiology, which I passed out at the first attempt. तो मतलब आप गैलेक्सी और अल्फ़ा जो आप बोल रहे हो मैसाना और अहमदाबाद दोनों जगह कैसे मैनेज कर लेते हो सर? So both the places have a team. In Galaxy, I have a big team. So many doctors, full timers, visiting administrative staff, and for there, I have to just monitor and I have to just see the patients and treat them. ओके Remaining things my team manages. And for Alpha, we are 6 partners in Alpha, ओके 4 cardiologists and 2 cardiac surgeons. क्या बात है। So there again we have a big team over there. We have a specialist, super specialist visiting full time ओके over there in Alpha. I generally give 2 half days at Alpha, अच्छा and the rest of the time I manage. I stay at Mehsana basically. There I have a very large crowd of patients. ओके I have a base of 15 years, so I was the first full timer of the North Gujarat in that time in 2008-10. ओके So I have a large number of patients over there, and they also wish that I should stay here. So I stay more time at Mehsana Galaxy and part time at Alpha Ahmedabad. ओके सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए? See, when you have certain symptoms like आपको छाती में दर्द हो, पर्टिकुलरली कोई काम करने से, एक्टिविटी करने से हो, घबराहट हो, कुछ अनईजीनेस लगे, पर्सपिरेशन ज़्यादा हो, ओके सांस फूलने लगे। आप पहले आपको सांस नहीं फूलती थी, अब आप अपना रूटीन वर्क करते हो तो भी सांस फूलता है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हो तो सांस फूलता है।
So that suggests that you have certain issues. It may be a cardiac issue in the form of a blockage of the cardiac arteries, vessels, and because of the insufficient blood supply, you are not getting enough oxygen and blood supply. Your heart is not getting enough oxygen blood supply. That's why you are getting these symptoms. So to rule out that, those who have symptoms, those who have multiple risk factors, like you are a long-standing diabetes, hypertensive, you are a chronic smoker, tobacco chewer, you have a strong family history of heart problems in your family, particularly at the young age, and in this scenario, you should visit either a cardiologist or a good MD physician. ओके। और जैसे कि आपने बताया कि आपके 2 जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, तो आपके हॉस्पिटल्स में जब भी आपकी ओपीडीज चलती है तो मेनली कौन से एज के जो लोग होते हैं वो आपके वहाँ पे आते हैं? See, basically heart disease is multiple spectrum. जैसे कि एजेड लोगों की डिजीज़ अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। बच्चों की जो डिजीज़ होती है उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हार्ट में कोई छेद हो, कोई वाल का प्रॉब्लम हो, हार्ट की जो रचना हो वो कुछ गलत हुई हो, और कोई चेम्बर अच्छे से बना ना हो, वेसल्स अच्छे से बने ना हो, तो ऐसे पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। सो उनमें हम सर्जरी करवाते हैं वेर एवर देयर इज इंडिकेशन। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में अगर डिजीज़ है तो उसमें मेडिसिन का इतना रोल नहीं है। सेकेंड कैटेगरी इज एडल्ट हार्ट डिजीज़। एडल्ट हार्ट डिजीज़ में 2-3 स्पेक्ट्रम है अगेन। वन इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम हार्ट अटैक या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या ब्लॉकेज ऐसा कुछ बोलते हैं। एंड सेकेंड इज़ वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, जिसमें बिकॉज ऑफ द सर्टेन इन्फेक्शन हार्ट वाल्स गेट अफेक्टेड एंड वाल्स गेट आइदर स्टीनोस, मतलब नैरो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या फिर वो डायलेट करके लीक करते हैं। तो ऐसे केशन में एडल्ट हार्ट डिजीज़ होती है जिसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। उसका मैनेजमेंट अलग होता है, उसमें मेडिसिन से भी इम्प्रूव होते हैं अगर पेशेंट इज हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़। अगर पेशेंट इज हैविंग सीवियर डिजीज़ तो उसमें सर्जिकल या बलून इंटरवेंशन आता है। और देन द मेन जो चंक ऑफ द पेशेंट्स है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दैट इज इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम। हार्ट अटैक रिलेटेड बीमारी बोलते हैं। तो वो पेशेंट ज़्यादा आते हैं हमारे पास। एज की बात करें तो जैसे मैंने बताया पीडियाट्रिक पेशेंट भी आते हैं और एल्डरली भी आते हैं, यंग एज वाले भी अब आते हैं बहुत। पोस्ट कोविड एंड पोस्ट कोविड वैक्सीन, देयर इज़ अ फियर इन पीपल, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, कि मुझे कुछ हो न गया हो, मुझे कुछ हो न जाए। तो अगर आपके आसपास में कहीं पे भी हृदय का प्रॉब्लम किसी को हुआ है, ऐसा सुनने में आता है, या कोई यंग डेथ होती है, या न्यूज़ चैनल में टीवी में चलता है, सोशल मीडिया में कि भी छोटी एज में इसका डेथ हो गया, देन द पीपल अपने आप आते हैं रूल आउट करने के लिए कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज़ अ यंग पॉपुलेशन, इस हिसाब से आता है। उसमें ज़्यादातर पीपलों को हार्ट प्रॉब्लम होते नहीं है, जिससे उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, उनका फियर होता है, जिसको हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवा के रूल आउट करते हैं। उनको काउंसिल करते हैं कि भाई आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, अनलेस दोज पॉपुलेशन इज अंडर वेरी हाई रिस्क। लाइक बहुत स्मोकिंग करते हैं, बहुत बाहर का खाते हैं, बहुत स्ट्रेस आउट रहते हैं, लेट नाइट तक जगते हैं, और शांति नहीं है उनके जीवन में, देन वी गो डीप इनटू सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। उसके लिए हम दूसरे टेस्ट का भी सहारा लेते हैं। मेन जो पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का है, जिसमें ऑलरेडी उनको कुछ है अंदर। जैसे कि ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से मैंने जो बताया वो सिम्टम, चेस्ट पेन, घबराहट होना, सांस फूलना, अनईजीनेस लगना, बार बार गैस एसिडिटी हो जाना। तो ऐसे पेशेंटों में हम डीप में जाके उनको रूल आउट करते हैं, जिसमें हम ECG को ट्रेडमिल टेस्ट जो करते हैं, फिर हम ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी भी करते हैं, करवाते हैं, सलाह देते हैं। उस हिसाब से हम उनको ज़्यादा इवेल्यूएट करके उनको कंप्लीट ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि पीडियाट्रिक जो है और एडल्ट जो है, ये दोनों आप ही देखते हो वहाँ पे?
वैसे कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, ओके जैसे कि आई एम एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, हम्म। बट बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट आई केम टू नो कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब जो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट है वो बच्चों को भी देख सकता हाँ है? ऑब्वियसली देख सकता है, उनको अच्छा। पता तो होता ही है। हम्म। हम जब स्टडी करते हैं तो पीडियाट्रिक पेशेंट भी तो हमारे स्टडी में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, उनके भी अच्छा। केस रखे जाते हैं फाइनल एग्जाम्स में। हम्म। पीडियाट्रिक केसेस हर एक फाइनल एग्जाम में होते ही है, अच्छा। कार्डियोलॉजी की एग्जाम में, ओके तो उसमें हमें पता तो चल ही जाता है। ओके बट बीइंग ए एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट सो मेनी ईयर से मैंने पीडियाट्रिक में बहुत काम नहीं किया है, सो आई रिफर इट टू माई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा। और पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन। ओके। जैसे आपने बताया कि कोविड के वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक्स की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, तो ये यंग एज में ज़्यादा बढ़ रही है? जैसे अभी का सिनेरियो अपने देखा जाए तो यंग एज में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है या अभी का जो सिनेरियो है, फूड है जो मिलावट खाना आ जाता है, या उन सब के वजह से हो रहा है वो? सी आई डिडंट से कि कोविड वैक्सीन से ऐसा हुआ है, एंड आई हैव नो डेटा, कंफर्म डेटा अबाउट दैट। ओके पीपल फील लाइक दैट कि वैक्सीन की वजह से हुआ है या कोविड की वजह से हुआ है। तो कोविड एक सिस्टमिक डिजीज थी, सिर्फ वो बुखार या सर्दी जुकाम जैसा नहीं था। इट वॉज ए सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके तो इन्फ्लामेशन कहाँ होता है? जहाँ जहाँ वास्कुलेचर होता है वहाँ होता है। वास्कुलेचर कहाँ है? पूरे शरीर में है। हार्ट की नलियों में वही वास्कुलेचर है, हार्ट की वेसल्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, पूरा वास्कुलेचर है। ब्रेन की, हाथ की, पैर की, बॉडी की, इवन फेफड़ों की भी नलियाँ, कोई भी नली ले लो आप, पूरा वास्कुलेचर ही है वो सब। तो कोविड ने वास्कुलेचर पे डेफिनेट असर किया है। रिगार्डिंग अब कोविड की वजह से अटैक आ रहे कि नहीं, वो कहना मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि आई कैन स्टेम दैट। ट्रायल्स आर कमिंग, ट्रायल्स विल कम। कोविड के समय में लोगों को हार्ट अटैक, इन्फ्लामेशन, कोएगुलोपैथी, क्लोटिंग होना, वो सब हुआ था। हार्ट अटैक भी हुए थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हुआ था, जो कोविड में बहुत कॉमन था, जिसमें आपको याद हो तो हम डी डाइमर करवाते रहते थे पेशेंटों का। हाँ। कोविड के पेशेंटों का। और जब तक डी डाइमर नॉर्मल नहीं होता था तब तक पेशेंट को कुछ न कुछ एंटीकोगुलेंट या एस्पिरिन देते रहते थे। द रीज़न इज कि कोविड की वजह से कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता था। जिसका एंड प्रोडक्ट डी डाइमर है, तो डी डाइमर से पता चलता है कि इस पेशेंट में कोएगुलेशन की एक्टिविटी अभी भी चल रही है या नहीं चल रही। ओके। तो उस वक्त हुआ था लोगों को बहुत, जितना दूसरी वजह से है उतना नहीं है कोविड की वजह से। और कमिंग टू द वैक्सीन पार्ट, वैक्सीन का भी कुछ डेटा ऐसा है कि भाई उससे कोएगुलेशन हुआ था या होता है, बट इतने सालों तक वैक्सीन का कोएगुलोपैथी रहना, इट इज स्टिल अनएक्सप्लेन, इट इज स्टिल अनप्रूवन। तो वो तो समय बताएगा कि कोविड वैक्सीन से वो हुआ। हाँ, रेयर केसेस में क्लोटिंग हुआ था, वो तो ऐसे भी होता है लोगों को। हाँ। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आपको अगर कोविड हुआ है, आपने अगर कोविड वैक्सीन लिया है, तो आप ऐसे मत मानिए कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके। ऐसे डर से आप मत जिए। ऐसा आप फील मत करिए कि मुझे कुछ हो जाएगा बिकॉज आई हैव टेकन कोविड वैक्सीन। वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके। सी, वैक्सीन से जितने हार्ट अटैक आए होंगे या फिर कोविड से आए होंगे, उससे कहीं ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम से आए होंगे, जिसमें आपने ये जो पूछा अनहेल्दी फूड और एडल्ट्रेटेड फूड। तो आप अपनी ओर देखो, चारों ओर देखो, एवरीवेयर जंक फूड के आउटलेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप नए नए कितने जगह है जहाँ पे कुछ न कुछ नया नया डेवलप होता जा रहा है, चलता है फिर वो बंद हो जाता है, चलता है, नया आता है, बंद हो जाता है, रोज कुछ ना कुछ नया ओपन। हाँ, रोज कुछ न कुछ नया ओपनिंग है। तो ये जो आप बाहर का खाना खाते हैं, ये जो आप फ्राइड फूड खाते हैं, ये जो फूड प्रिपरेटर्स है जो बनाते हैं फूड, उनकी कितनी समझ है इस चीज़ों के बारे में कि मेरा ये हैबिट और ये प्रैक्टिस लोगों को कितना हार्म कर सकता है। वो नॉलेज जितना सामने वाले के पास में होगा ना, उतना आपको प्रॉब्लम कम आएगा। अगर वही तेल है, उसमें आप पकोड़े तलते जा रहे हो और 10 बार तले, और वही तेल में से 20 बार तले और थोड़ा बचा, उसमें नया तेल डाल दिया और फिर से तला, तो दैट इज गोइंग टू हार्म द पीपल हु ईट दैट तले हुए पकोड़े। सेम चीज़ आपका बाकी की खाने की चीज़ों में है। जैसे पनीर का भी एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कि मोस्ट ऑफ द पनीर सर्कुलेटिंग इन गुजरात इज अनहेल्दी। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि बनाने वाले हैं जो एडल्ट्रेशन करते हैं,
उनको अपने प्रॉफिट से ही मतलब है या उनको अपने जॉब वर्क से ही मतलब है। मेरे ख्याल से जो बना रहा है, नकली पनीर बना रहा है, उसको भी पता नहीं कि इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। हाँ जी। उसको किसी ने बोल दिया कि तुम ऐसे करके इतना माल मुझे दे देना, बाकी का मैं देख लूंगा। हाँ। तो उसको अपने वर्क से और उसके पैसों से मतलब है। फिर जो सेलर है उसको भी नहीं पता है कि ये इतना सस्ता पानी लोगों के शरीर में जाएगा तो उनको क्या हार्म करेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई है। तो बेसिकली इट्स अ लॉन्ग चेन। ओके। उसके बारे में हमारा फूड डिपार्टमेंट काम कर ही रहे हैं, अच्छे से काम करे। बहुत सारी रेड पड़ती है, हाँ जी। हर रोज़ पेपर में आता है, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय भी करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, बीइंग ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इतने स्ट्रिक्ट लॉज लाइए, जी। आप इतने स्ट्रिक्ट लॉज लाइए कि किसी की ऐसी हिम्मत ही ना हो कि दूसरे की हेल्थ के साथ कुछ खिलवाड़ कर सके। फिजिकली हमारे यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऑन पेपर लॉज है सब, हाँ। लेकिन उसका ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी वजह से ये अनहेल्दी फूड बहुत है मार्केट में। सी फॉरेन कंट्रीज में आप कोई भी पैकेट लो या कोई भी इवन बनाना का भी वो लो, आप बनाना भी लो, एक अच्छा। बनाना, ओके। उसमें भी उसके ऊपर लिखा होता है अच्छा। कि हाउ मच कैलोरी इट कंटेन्स, ओके। how much protein, how much sugar. Giving an example of banana, not banana is not having protein, but if you take any packet over there, even a bread, you take a bread packet, तो वहाँ पे टोटल क्वांटिटी में, टोटल ग्राम्स में Description कितना लिखा कैलोरी, है। कितना प्रोटीन, कितना पूफा वाला फैट, पोली अनसेचुरेटेड फैट, कितना मूफा वाला फैट, कितना ऑयल, वो सब लिखा होता है और वो उनको कंपलसरी लिखना होता है। हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी हमें उनके लिए लिख के भेजना पड़ता है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ पे भी ये हो गया है। इफ़ यू से एनी नमकीन पैकेट देन इट इज़ रिटन कि पर 100 ग्राम इतना है और पर सर्विंग इतना है, पर ग्राम इतना है, कॉस्ट के साथ लिखा है। तो ये चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ये चीज़ों के पीछे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सी इतना बड़ा कंट्री 140 करोड़ का, तो उसमें अगर आप लॉ स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो माल प्रैक्टिस होने वाली ही है। फिर वो सारे लॉस आपको सबके लिए रखने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के लिए भी रखने पड़ेंगे, दुकानदार के लिए भी रखने पड़ेंगे, सबके लिए। जितना ये अनहेल्दी चीज़ें आएंगी मार्केट में उतना लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा, उतने आपके केसेस बढ़ेंगे। केसेस बढ़ेंगे तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, अल्टीमेटली तो कंट्री को ही नुकसान है। हाँ, जो अभी हो ही रहा है वैसा, हाँ, कुछ ना कुछ exactly. चीजें हो ही रही है। हार्ट प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं, फिर कैंसर के प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं, फिर पीरियाडिक पेशेंट्स के प्रॉब्लम बहुत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत है। सो उसका अपनी फूड हैबिट्स और अपना फूड स्टाइल वो सब भी उसके लिए जवाबदार है। ओके। जैसे आपने बताया कि हार्ट अटैक्स मतलब बिन बुलाए मेहमान है वो वन टाइप ऑफ, तो अगर किसी को भी फॉर एग्जांपल कोई रोड पे जा रहा है उनको आ जाए, कोई घर पे है उनको आ जाए, तो आसपास वाले लोग हैं वो उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? सी अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और आपकी नोटिस में आया है, तो पहले तो आप उनको कोई सेफ प्लेस पे ले लीजिए। ओके। मान लो कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैंने देखा कि एक बाइक वाला गिर गया है, कोई टू व्हीलर वाला गिर गया, तो मुझे रोड पे कुछ नहीं करना है। ओके। अदरवाइज मेरी और उसकी दोनों की सेफ्टी जोखिम में आएगी। तो पहले तो आप उनको उठा के साइड में ले लीजिए, ट्रैक पे ले लीजिए साइड में, या कोई सोने लायक जगह पे रख दीजिए साइड में जहाँ पे दूसरा हादसा ना हो। हाँ। आपके साथ उनके साथ। फिर आप उनको पल्स पाल्पेट करने का ट्राई करिए। पल्स एवरीबडी कैन पाल्पेट फ्रॉम हियर। पल्स इवन आप हार्ट पे भी हाथ रखेंगे तो यू कैन फील कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, धड़कन आ रही है कि नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पल्स नहीं आ रही है या कम आ रही है या फीबल आ रही है, तो आप उसको CPR करिए। CPR में हार्ट को कंप्रेस करना है और फिर ब्रीदिंग देना है। हार्ट को कंप्रेस करना है 4 बार, फिर 1 बार ब्रीदिंग देना है जी। मीनवाइल अपने यहाँ पे 108 की सर्विसेज बहुत अच्छी है। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत एप्रिशिएशन है कि उन्होंने एक ये आइडिया लाए और 108 लाए जो अपने 5-7 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाती है अपने पास। जी। तो हमें वो 5-7-10 मिनट का समय है, उसी का ध्यान रखना है। जब तक वो पैरामेडिक्स और मेडिक्स आ नहीं जाते, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं आ जाती ऑन द व्हील्स, तो तब तक आप कंप्रेशन करिए, चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग दीजिए।
ब्रीदिंग के लिए वी ऑल नो दैट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हैज़ टू बी गिवन। आपको ओरल का हाइजीन का केयर आपका खुद का उनका लेना है। यू कैन यूज ए नेपकिन। बस इतना आप करिए, तब तक वो आपका एम्बुलेंस सर्विसेज आ जाएंगी। देन यू कैन आस्क देम टू गो टू द नियर बाई प्लेस। जी। तो बाई स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, देखने वाला, वो अब इस तरीके से हेल्प कर सकता है। और इट हैज़ बीन प्रूवन कि किसी को भी अगर कार्डियक अरेस्ट हुई है या सडन कार्डियक डेथ का एपिसोड आया है, तो अगर किसी ने टाइमली CPR दिया है तो पेशेंट का सर्वाइवल के चांसेस, उनका न्यूरोलॉजिकल डैमेज कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब वो सर्वाइव हो जाता है। सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन को किस पैथोलॉजी की वजह से आया है। ओके। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक की सबसे अच्छी बात यह है कि टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट को कुछ नहीं होता है। ओके। हार्ट अटैक एक ही ऐसी बीमारी है, मतलब जो हमने देखी है कि इट इज़ हाईली रिवॉर्डिंग। ओके। आपके पास अटैक का पेशेंट आया, आपने अटैक डायग्नोस किया, टाइमली आपने उसका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बलून कर दिया, वेसल फ्लो हो गई, आपके सामने ही दिखता है कि वेसल अच्छे से फ्लो हो गई, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, हार्ट का डैमेज रुक गया, इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया, हेमोडायनेमिक्स इंप्रूव हो गए और पेशेंट सर्वाइव हो जाता है। ओके। तो दिस इज द हाईली रिवार्डिंग डिजीज अगर टाइमली उसका इंटरवेंशन हो जाता है। ओके। और सर, मैंने ये भी सुना है कि वो हार्ट अटैक के टाइम पे एक मेडिसिन आती है जो हम लोग टंग के नीचे रखते हैं, तो वो क्या है मतलब? सी मेडिसिन्स हार्ट अटैक में 2-3 आती है। जो जीभ के नीचे आपने बोला रखते हैं, उसको सॉर्बिडेट, मतलब वो हार्ट वेसल्स को चौड़ा करती है, खून सर्कुलेशन बढ़ाती है, एक वो होती है। उससे पहले किसी को अगर हार्ट अटैक आए तो डिस्प्रिन, एस्पिरिन उसको चबा जानी चाहिए या पानी में डाल के पी लेनी चाहिए। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी लोग अब घर पे या अपने पास रखते हैं, जो आप ले सकते हैं, जिससे आपको कोई हार्म नहीं होने वाला। उसके साथ साथ एस्पिरिन के साथ साथ दूसरी ब्लड थिनर भी आती है। अच्छा। 2-3 कैटेगरी की आती है, उनमें से कोई भी एक आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। एजुकेटेड लोग अब ऐसी एक किट लेके घूमते हैं साथ में, जिसमें एस्पिरिन हो, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो और एक दूसरी एंटी प्लेटलेट हो। तो वो कॉम्बिनेशन लेने से पेशेंट का ब्लड थिनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मे बी कभी कभी उतनी मेडिसिन से भी नली फ्लो होना चालू हो जाती है। और सॉर्बिडेट जो है, जो जीभ के नीचे रखने की बात की आपने, उसमें आपको पेशेंट का प्रेशर अच्छा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। अगर प्रेशर अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर, तो और ब्लड प्रेशर डाउन कर सकती है वो। अच्छा। तो वो लेना एडवाइजेबल नहीं है अनलेस यू हैव बीन सीन बाय सम डॉक्टर। अच्छा। ये तीनों आप ले सकते हैं। ओके। वो हमें इजीली मिल सकती है बाहर से? मिल जाती है, बाजार से इजीली मिल जाती है। सर, हमने ब्लॉकेज के बारे में बात की, जैसे कि ये जो ब्लॉकेज रहता है वो एकदम से हार्ट अटैक नहीं लाता हमें, वो ब्लॉकेज कुछ बनता है, उसके बाद धीरे धीरे करके हमें कुछ हार्ट अटैक आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हार्ट अटैक आने के लिए मेन चीज़ होना है वो है ब्लड का क्लॉट हो जाना। तो ब्लड का क्लॉट क्यों होता है कि जो हमारे हार्ट की नलियाँ, उसमें जो चर्बी का जमावड़ा जो होता है वो रप्चर होता है, वो उसको प्लेक बोलते हैं, मेडिकली उसको प्लेक बोलते हैं। तो अगर वो प्लेक बहुत लिपिड रिच है देन इट इज़ अ रप्चरेबल प्लेक, मतलब वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाता है। जैसे ही वो रप्चर होता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पहुँच जाते हैं खून में से और उसको क्लॉट बना देते हैं, मतलब वो एरिया को। जब ये क्लॉट 100% हो जाता है तो अटैक आता है पेशेंट को। 100% से कम रहता है तो प्री MI, अटैक के पहले का स्टेज आता है, जिसमें पेन होना, ब्लड एंजाइम्स पॉजिटिव होना, इको में दिखना कि भाई पंपिंग डाउन हुआ है, ECG में चेंजेस होना। तो ये हुआ हार्ट अटैक। वन इज़ अ प्लेक रप्चर हार्ट अटैक। वो सडन होता है। प्लेक होना, प्लेक का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 10-20% भी हो सकता है, 30-40% भी हो सकता है, वेसल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखने जाए तो ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स नहीं होते, उनको प्री मॉनिटरी सिम्टम जो बोलते हैं ना वो नहीं होते। तो ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में होता है। कि आपने बहुत स्मोकिंग करी, यंगस्टर्स में जनरली अच्छा है कि ये बात चल रही है। तो यंगस्टर में जो हार्ट अटैक है तो उसमें सबसे कॉमन कॉज इज स्मोकिंग टोबैको। अल्कोहल उतना नहीं है, लेकिन ये दोनों तो बहुत है, स्मोकिंग टोबैको। देन ड्रग्स, जो अभी ड्रग्स का बहुत चल रहा है, तो ड्रग्स कैन कॉज ऑल्सो सडन हार्ट अटैक इन यंग पॉपुलेशन। उसके बाद में यंगस्टर्स का जो हार्ट अटैक होता है वो ये इरेटिक लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे।
फिर दूसरा जो आपने बोला कि आपने सुना है कि हार्ट अटैक थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट्स होते हैं उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं और ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं वो। ओके। जैसे कि किसी को बहुत साल से डायबिटीज़ है, किसी को बहुत साल से हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबिसिटी है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या स्मोकिंग है। तो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में अदर टिश्यू जमा होती है नलियों में, और वो नली को थोड़ा सिकुड़ती है, ओके। विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसको हम अथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ओके। जब वो नैरो डाउन हो जाती है, 100 आर्टरी पूरी खुली है, उसमें से जब आर्टरी 80-90% नैरो डाउन हो जाती है, ओके। तब ब्लड कम पहुंचता है वहाँ से। पर्टिकुलर जब आप काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो ब्लड का फ्लो वहाँ लिमिटेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से उनको सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। ओके। तो वो सिम्टम्स उनको चलने फिरने से आते हैं, काम करने से आते हैं, घूमने से, स्ट्रेस लेने से आते हैं। वो लोग बैठते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है, फिर से वो चलते हैं तो फिर से होने लगता है। खाने के बाद वो घूमते फिरते हैं तो उनको होने लगता है, क्योंकि खाने के बाद जीआई सिस्टम को ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इधर आपका नैरोइंग है, इधर ब्लड सप्लाई जा नहीं रहा है, तो खाने के बाद अगर आप घूमोगे तो अगर आपको वहाँ सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो दैट मे बी रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम्स। उसमें फिर सडनली अगर वो जो एथ्रोमा जो जमा हुआ है वो अगर रप्चर होता है, जैसे यंग पेशेंट में फाइब्रोफैटी एथ्रोमा रप्चर हुआ था, तो ये थोड़ा फाइब्रस कैल्सिफिक एथ्रोमा होता है जो धीरे धीरे नैरो डाउन होता है। तो डिफरेंस दोनों पॉपुलेशन में ये है कि इसमें स्लो प्रोसेस है, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस विच कैन टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, और उसमें अगर प्लेक रप्चर होता है तो अटैक आता है। इसमें एथ्रोमा बिल्कुल छोटा सा है, मतलब कुछ खास परसेंटेज नहीं है, और सडनली प्लेक रप्चर करता है तो उसमें सडन अटैक आता है। ये डिफरेंस है। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, और पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें ये एक अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जनरल पब्लिक के लिए कि मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें ये प्री मॉनिटरी सिम्टम्स कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को ऐसे बोलता हूँ कि भगवान है ना बहुत दयालु है, गॉड इज़ वेरी काइंड टू एवरीवन। वो आपको एक चांस देता है कि कुछ तुम्हारे शरीर में है, तुम उसको पकड़ लो। उसको अगर आपने इग्नोर किया, उसको जैसे कि घर बैठे बैठे आपने इनो पी लिया, घर बैठे बैठे आपने देसी उपचार कर लिया, आपने ये सोच लिया कि मैं तो कल बहुत काम किया था उसकी वजह से मुझे चेस्ट पेन हुआ है, मैं तो 2 दिन से सोया नहीं हूँ इसलिए मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, या मुझे घबराहट हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ है रही है, देन यू विल मिस इट। तो एक अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो आई वॉन्ट टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक कि आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है आपको, तो आप उसका घर पे इलाज मत करिए। यू गो टू द नियर बाई प्लेस, टेक ए ईसीजी। ईसीजी में क्या होगा, 200-500 रुपये का खर्चा होगा आपका। आप ईसीजी कराओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका हार्ट में कुछ इश्यू है कि नहीं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल भी आता है, तो फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल आया तो आप पेन किलर लेके मत चले जाइए। अच्छा। रुकिए वहाँ पे, 1 घंटे के बाद फिर से ईसीजी करवाइए। अच्छा। अगर हार्ट का कुछ ऑनगोइंग प्रॉब्लम है तो वो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा। सो इन आवर प्रैक्टिस व्हाट वी डू, हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन वाला पेशेंट आता है तो हम एक ईसीजी नॉर्मल देख के उसको भेज नहीं देते घर पे। वी इंसिस्ट देम टू स्टे देयर, इवन दे फील कि भाई नॉर्मल ईसीजी क्यों जरूरत है। भले ही उनको ऐसे लगे, भले ही लगे कि डॉक्टर साहब तो ऐसे ही रहने की बोल रहे हैं, उनको तो ये मिलेगा वो मिलेगा, भले वो उनका सोच है, हमें पता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम। इफ पेशेंट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स, इफ पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, तो हार्ट के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबको सिर्फ यहाँ पे चेस्ट पेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो हम मूवी में देखते हैं ना कि यहीं पे ऐसे आदमी लटक गया, लुढ़क गया, ऐसे सबको नहीं होता है। सो यहाँ पे भी पेन हो सकता है, आपको गले में भी हो सकता है, आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी हो सकता है, आपको बैक में भी हो सकता है, आपको राइट साइड में हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे तो इधर दर्द था, इधर तो था ही नहीं, मतलब कि हार्ट का नहीं था, किसी और चीज़ का था। हार्ट का दर्द हार्ट के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
रिफर्ड पेन, चेस्ट का पेन इज अ रिफर्ड पेन, ओके। जो कहीं पे भी चेस्ट में हो सकता है, फ्रंट में, बैक में, साइड्स में, आर्म्स में, कहीं पे। इवन ऐसा भी बोला जाता है कभी कभी कि डेंटल पेन भी हार्ट का होता है। तो अच्छा। आपको बार बार डेंटल पेन हो रहा है, पर्टिकुलरली चलने फिरने से होता है, तो आपको रूल आउट करना है। रूल आउट कैसे करते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ईसीजी करवाइए, इको करवाइए, ब्लड रिपोर्ट्स करवाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर वो सब देख लीजिए। ओके। ट्रेडमिल कराइए, खास करके एक्सरसाइज टेस्ट कराइए। इफ़ यू आर एबल टू वॉक, ओके। तो आप जो आप ईसीजी जनरली नॉर्मली देखते हैं वो रेस्ट ईसीजी होता है। अच्छा। इको होता है, रेस्ट इको होता है। हम्म। वही चीज़ हम स्ट्रेस दे के करते हैं, आपको चला के दौड़ा के करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडमिल और स्ट्रेस टेस्ट। अच्छा। उसमें आपको हम थोड़ा श्रम करवाते हैं 5-10 मिनट तक, 10-12 मिनट तक, और हमारे जो आपके ग्रेडिंग ऑफ द एक्सरसाइज इंक्रीज होती जाती है। ओके। तो हार्ट का जो स्ट्रेन है हम बढ़ाते हैं एक्सरसाइज करके। उस वक्त सर्कुलेशन बराबर है कि नहीं वो ईसीजी में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। So though it's not 100% confirmatory test for the heart problems, but it gives indirect indication कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इनको होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। ऐसा। और ईसीजी इको के बाद भी अगर पता ना चले, इवन ट्रेडमिल आपने बोला, पर कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रेडमिल नहीं कर पा रहा है, तो आप आगे क्या प्रोसेस रहती है उसकी? तो जो ट्रेडमिल नहीं कर पा रहा है उसके लिए बहुत सारे दूसरे टेस्ट है, जैसे कि स्ट्रेस इको है, अच्छा। जिससे कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जैसे कि स्ट्रेस इमेजिंग है, अच्छा। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अच्छा। जो एंजियोग्राफी आजकल बहुत कॉमन है, तो वो एंजियोग्राफी से आपको 100% पता चल जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है हार्ट का या नहीं है। अच्छा। उसमें आपको 2-4 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर। उससे आपका नलियों में जाके हम इंजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत एक मिसकंसेप्शन और एक माल इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे घूम रही है कि भी हम तार डालते हैं, अच्छा। शरीर में तार डालते हैं। तो सी, वो कोई तार नहीं होता है, ओके। वो एक गाइड वायर होता है जो बहुत छोटा होता है। अगर मुझे हाथ से या पैर से हृदय तक पहुंचना है तो मैं ऐसे कैसे पहुंच जाऊंगा? हाँ। सो एक डिफाइन शेप, ओके। प्री डिफाइन वायर आता है जिसके थ्रू हम एक कैथेटर ले जाते हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन के साथ में, जिसके गाइडेंस के साथ में। ओके। वहाँ जाने के बाद हम वायर निकाल देते हैं तुरंत, और जो हमारा कैथेटर है वो हृदय की नली में बैठाते हैं, ओके। और उससे हम डाई इंजेक्ट करते हैं बाहर से, जिससे नलियों में डाई जाती है। तो एक्सरे मशीन के अंदर, स्पेशलाइज एक्सरे मशीन के अंदर वो कैप्चरिंग होता है। अच्छा। और वो हमें बताता है कि ये नली जो है उसमें 100%, इस एरिया में 100% ओपन है, और इस एरिया में 50% नैरो डाउन है, इस एरिया में फिर से ओपन है, इस एरिया में 90% नैरो डाउन है। अच्छा। तो ये एक भाई साहब ने ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है सोशल मीडिया पे काफ़ी सालों से कि कार्डियोलॉजिस्ट तार डालते हैं, तो कोई तार नहीं डालते हैं। और ये इनर्ट मटेरियल होता है जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। अच्छा। लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों में ये टेस्ट किया हुआ मटेरियल है। तो अगर कोई सेफ चीज़ ना होती तो कोई हमारी बॉडी में डालता ही क्यों? हाँ, सही है। और इतने सारे लोगों का एंजियोग्राफी हो रहा है, वो तार ने कोई नुकसान किसी को किया हो वो तो कहीं है ही नहीं लिटरेचर में कहीं, आज तक नहीं आया। हाँ। सी, कॉम्प्लिकेशन सब चीज़ों के होते हैं, एंजियोग्राफी के भी कॉम्प्लिकेशन है जो रेयर केस में होते हैं। ओके। पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपने जो सेटअप सिलेक्ट किया वो अच्छा नहीं है, आपकी जो डॉक्टर है वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सीडेंट तो ड्राइवर से भी होते हैं। हाँ। गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते? बस में भी होते हैं एक्सीडेंट, ट्रेन में भी एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वो एक चीज़ को आप गलत तरीके से लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकते कि भी कार्डियोलॉजिस्ट तार डालते हैं तो ये एंजियोग्राफी मत कराओ। आपकी बात सुन के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात सुन के कितने सारे लोग हैं जो कराते नहीं हैं। हाँ, सही है। कितने सारे लोग हैं जिनकी जान जा रही है एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो हम कोई तार नहीं डालते, हम जो डालते हैं वो एक इनर्ट वायर होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, और वो बहुत केयरफुली एक्सरे के गाइडेंस में डाला जाता है जी। उसके रेफरेंस के साथ हम पहुंचते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। वो 2-4-5 मिनट का काम होता है। पेशेंट का 100% डायग्नोस्टिक वर्कअप हो जाता है। पेशेंट को कोई डायलेमा नहीं है,
फैमिली को क्लियर हो जाता है कि उनको कुछ है कि नहीं है, जी ट्रीटिंग डॉक्टर को पता चल जाता है कि इनको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। जी, आगे की प्रोसीजर Yes, की ज़रूरत yes, है या नहीं है। यस यस मतलब ये जो एंजियोग्राफी है वो एक डे केयर प्रोसीजर है और उसमें Exactly. कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग आजकल डर जाते हैं। एग्जैक्टली अब तो बहुत कॉमन हो गया है, फॉर्चुनेटली लोग सामने से ही डिमांड करते हैं। हम्म। लोगों को मना करना पड़ता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, जी लोग सामने से कराने आ जाते हैं, एंजियोग्राफी कर ही लो। हम्म इतना कॉमन है, इतना लोग अवेयर भी हो गए हैं। हम्म। और इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, डेफिनेटली इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। ओके। और एंजियोग्राफी के बाद अगर ब्लॉकेज आए तो फिर आगे क्या प्रोसीजर रहती है उसकी? ब्लॉकेज आते तो उसकी 3 तरीके की ट्रीटमेंट होती है। वन इज़ अ मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। जहाँ पे कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉकेज इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना टाइट नहीं है, इतनी बहुत बड़ी टेरिटरी के नहीं है, बड़ी आर्टरी के नहीं है, तो उसको खोलने से पेशेंट को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला हो, ऐसा एंजियोग्राफी में दिखता हो, तो ऐसे पेशेंट को हम मेडिकल मैनेजमेंट में रखते हैं, जिसमें खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, अच्छा। उसके जो भी रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो, बीपी हो, उसकी दवाई, उसके कोई सिम्टम्स हो तो उसकी दवाई ये देते हैं। साथ साथ में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाते हैं, जिसमें खाने पीने का, सोने का, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वो सब समझाते हैं। दूसरा है, अगर ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा है, 70-80% से ऊपर है, 90% से ऊपर है, अटैक आया हुआ है, अटैक आने का स्टेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, मेजर टेरिटरी का ब्लॉक है, मेजर आर्टरी का ब्लॉक है, अगर उसका कुछ इवेंट होगा तो पेशेंट की जान को खतरा है, तो फिर हम उसको ट्रीट करने की सलाह देते हैं, जिसमें 2 तरीके की सारवार होती है। वन इज़ अ स्टेंट, ओके। बलून स्टेंट, एंजियोप्लास्टी जो बोलते हैं वो, एंड सेकंड इज़ अ बाईपास सर्जरी, ओके। जिसमें वो आर्टरी को वैसे ही रहने देते हैं और नया बाईपास कर देते हैं, ओके। नई नलियाँ लगा देते हैं। ये दोनों में से एक तरीके का सारवार होता है, और वो पेशेंट के नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस, एसोसिएटेड कंडीशंस, और उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। ओके। और ये बाईपास सर्जरी आप लोग ही करते हैं या फिर उसके लिए दूसरे डॉक्टर्स होते हैं? जो बाईपास होती है वो बाईपास सर्जन करते हैं। ओके। मैं नॉन सर्जन हूँ, मतलब सर्जन नहीं हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ओके। तो जो विदाउट सर्जरी जो करना होता है वो सारा मैं करता हूँ। अच्छा। सर्जरी करना होता है वो हमारी दूसरी टीम करती है, ओके। जिसमें मैं कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, वो सब होते हैं। वो सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें 2-4 घंटे का ऑपरेशन होता है, पेशेंट को 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। ओके। एंजियोप्लास्टी बलून होता है, वो हम कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशनलिस्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट को 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाती है। वो नॉन सर्जिकली होता है, वो हाथ की नली से या पैर की नली से होता है। अच्छा। ओके। सर, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें बढ़ रही है यंगस्टर्स में, उसके वजह से वो लोग ज़्यादातर जो है वो मंदिर में जाने लगे हैं। ये जो केदारनाथ और इन सब जगहों पे आजकल यंगस्टर्स ज़्यादा जाने लगे, पहले नहीं जाते थे। तो इसका हेल्थ के रिगार्डिंग कोई है? तो ये हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, कि बहुत सारे लोग आजकल भगवान के पास जाने लगे हैं फिजिकली। तो केदारनाथ का जो ट्रेंड है इस बार, मतलब सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो वहाँ लोग क्यों जाते हैं वो तो उनको ही पता है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, ज़्यादातर लोग फोटोज़ निकालने जाते हैं, मंदिर के सामने दिखाने जाते हैं कि मैं 4 धाम जाके आया, केदारनाथ जाके आया। तो ये देखा देखी का हो गया है। पहले जो हमारे लोग जाते थे, एंशिएंट लोग, इसी मंदिर में जाते थे। पुराना मंदिर, आपने काफ़ी सोशल मीडिया में उसके फोटो भी देखे होंगे। तो वो लोग सही में भगवान से मिलने जाते थे। तो रिगार्डिंग दैट कनेक्शन विद द हेल्थ, तो इफ यू आर वेल कनेक्टेड टू गॉड, इफ यू आर स्पिरिचुअल, तो उसका हेल्थ पे असर तो है ही। ओके। यस। किस तरीके से है कि आप केदारनाथ जाओ या आसपास में कहीं शिव जी का मंदिर है वहाँ जाओ, या आप घर में बैठो, आप कितना ध्यान से बैठते हैं, उस वक्त आपके साथ क्या क्या है। आपके साथ मोबाइल है, आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। आप बैठे मंदिर में हैं, लेकिन आपके मगज में तो ये चल रहा है कि अभी आधे घंटे के बाद मुझे ये करना है, शाम को मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, ये करना है, कल ये हुआ था, वो हुआ था। तो आपको शांति मिलेगी ही नहीं। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, भगवान के साथ
पास क्यों जाते हैं लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उनकी अनुभूति करने के लिए जाते हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हैं। तो जाओ, केदारनाथ जाओ, लेकिन वहाँ पिकनिक मनाने मत जाओ। आप उनसे मिलने जाओ, आप भोले बाबा से मिलने जाओ वहाँ पे। और आपके घर में जो मंदिर है या आपके आसपास में मंदिर है वहाँ पे भी जाओ, लेकिन वहाँ जाके बैठो शांति से। मोबाइल को छोड़ो, सोशल मीडिया को छोड़ो, आप वहाँ जाके भगवान के सामने सेल्फी लेते हैं और फिर पोस्ट करते हैं। सो दैट इट सेल्फ प्रूव्स कि आप दिखावा करने जा रहे हैं। दैट इट सेल्फ शोज कि आप भगवान से मिलने नहीं जा रहे थे, आप कुछ और आपका इंटेंशन है, आपको लाइक्स चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए जाते हैं। तो उसके लिए मत जाओ। रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिज्म एंड हेल्थ, हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन स्ट्रेस से है, एंग्जाइटी से है, आपके लाइफस्टाइल से है। हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन आपको कितना पीस ऑफ माइंड है उससे है। हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन आपके नेचर के साथ में है। हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन आपकी डे टू डे एक्टिविटी के साथ में है। तो इन सब में स्पिरिचुअलिज्म का रोल जरूर है। अगर आप उनसे एक में खो जाते हैं, भगवान से या आप जिससे भी मानते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके एड्रेनालिन लेवल्स कम होंगे, आपके रिलैक्सिंग हार्मोन्स के लेवल बढ़ेंगे, आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रहेगा, आपका धड़कन कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल में रहेगा, आपको एबनॉर्मल लिपिड्स कम हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। अल्टीमेटली फ़ायदा ही है उससे। फिर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो आपका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली अपनी डे टू डे एक्टिविटी में उसका इम्पेक्ट आएगा जी। तो डे टू डे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो स्पिरिचुअली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने योगा का जी। पूरे विश्व को योगा के बारे में बताया, योगा डे डिक्लेयर किया, इतने बड़े पैमाने पे योगा हुआ हमारे यहाँ जो हर साल होता है जी। तो उसका फ़ायदा तो है ही ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे कर पाते हो? आप में इतने यंगस्टर है फिर भी नहीं कर पाते, वो कैसे कर पाते हैं इस एज पे? बिकॉज ये जो मेडिटेशन है, ये योगा है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, उसकी वजह से कर पाते हो। तो वो उनके पास से पूरे कंट्री को सीखना चाहिए वो चीज़ें। मतलब डे टू डे लाइफ में हमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। यस, करना चाहिए। ओके। अभी आप गुजराती में कહેવત છે ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે, તો मतलब ખાધું પીધું ને ઊભા થઈને પાછા ખાટલે બેસી ગયા, વળી પાછું ખાટલાથી ઊભા થઈને ફરી પાછા ખાધું પીધું ને બેસી ગયા। સો આ બેઠાડું જીવન જે છે ને, that is killing you. ओके। सो पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। व्हीकल का उपयोग थोड़ा कम करो हो सके तो। हाँ, अभी आप देखो बड़े बड़े रोड भी छोटे पड़ने लग रहे हैं। द रीजन इज कि एवरीवेयर ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग बिकॉज व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग जी। तो उस हिसाब से लोग इधर उधर पैदल चल के जो पहले जाते थे वो तो करते ही नहीं। अब साइकिलिंग इतना कम हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, मल्टी फैक्टोरियल है। ये जो हार्ट का एपिडेमिक है वो मल्टी फैक्टोरियल है जी। सर लास्ट के हमें कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए कि हम हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी कैसे रख सकते हैं। सो लोगों को बता दीजिए थोड़ा कुछ उसके बारे में। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। सी 100 साल तो सबको जीना है। एवरीबडी वांट्स टू लिव ए लॉन्गर लाइफ। सेकंड थिंग कि जीना तो है बट हेल्दी नहीं है आप तो भाई कुछ मतलब नहीं बनता। मतलब नहीं है, सही है। तो हेल्दी तो रहना है सबको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आप बैठ के लिस्ट बनाओ कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करूँगा, वो करूँगी। फिर वो लिस्ट ही नेक्स्ट टाइम फिर से अगर लिस्ट बनेगा, लिस्ट ही रह जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद, महीनों के बाद फिर याद आएगा। ऐसी बातें जैसे हमारी बातें हो रही है अभी, ऐसी बात सुनेंगे आप, ब्रह्म ज्ञान जागृत होगा आपका। कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए होगा और वो फिर से लिस्ट बनेगा। कल से मैं ये करूँगी, कल से मैं वो करूँगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, ग्राउंड पे उतरो।
जो भी आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मैं अपने टीममेट्स को बहुत बार बोलता हूँ कि युद्ध जीतने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ता है। तो क्यों उतरना पड़ता है? उसके बिना आप नहीं जीत पाओगे। कैसे जीतोगे? दूर बैठे बैठे कैसे जीतोगे? तो आप जितना हो सके उतना एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ अपना। व्हीकलों का उपयोग कम करो, लिफ्ट का उपयोग कम करो। इफ पॉसिबल आप सीढ़ी चढ़ के जाओ, उतर के सीढ़ी से उतर के आओ। और आसपास में जाना है तो साधन को दूर रखो और चल के जाओ बाकी का। वॉकिंग करके जाओ। फिर वॉकिंग करो, जो आजकल लोग 10,000 स्टेप्स का गिनते हैं मोबाइल में। अच्छा है वो, 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं तो अच्छा है आपके लिए। साइकिलिंग का थोड़ा ट्राई करो जितना हो सके उतना। सेकंड, मेडिटेशन योगा तो अच्छी बात है ही, जितना हो सके उतना वो करो। भगवान से कनेक्टेड रहो, अच्छे अच्छे बातें सुनो, अच्छे अच्छे जो हीलर्स है, जी। अपने जो संत गुरु महात्मा है उनकी बातें सुनो, उनकी वीडियोस सुनो, उनकी बातों को अपने अंदर लाने का ट्राई करो। दूसरा ये जो हम कर सकते हो, बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम कर दो। अच्छा। मेरी ये बातें जो फूड इंडस्ट्री वाले हैं उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन भले ही उनको अच्छी ना लगे, जितना हो सके उतना बाहर का खाना कम करो, बंद करो। वहाँ पे कोई क्वांटम नहीं है चीज़ों का। ओके। पिज़्ज़ा भी होता है तो 7 चीज़ी पिज़्ज़ा होता है। एक लेयर का चीज़ नहीं, 7 लेयर का चीज़। हाँ। अरे भाई, ऑलरेडी तुम ये सब खा रहे हो, उसमें भी आपको चीज़ भर भर के चाहिए। हाँ। पनीर, चीज़, बटर, मसाला, ऐसा नहीं होता। बाहर का खाना है तो सामने फिर आपको दूसरे दिन उतना कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। दूसरे दिन खाया, बात सही है, चलो टेस्ट के लिए खाना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप रूखी सूखी रोटी खाओ, घर का ही बार में डेली 365 डेज घर का ही खाओ जी। नमक नहीं और ये नहीं वो नहीं, ऑयल नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने पेशेंटों को ये समझाता हूँ कि आपको अगर हार्ट की बीमारी है या होने वाली है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। तो मैं अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी स्वीट खाने से मना नहीं करता हूँ। अच्छा। यस, मेरे यहाँ पे कुछ अलग प्रैक्टिस है। हाँ। मैं घी तेल खाने से भी मना नहीं करता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि लिमिट में रहो सब चीज़ों में। अपने रिपोर्ट्स, अपने लेवल्स को ट्रैक करते रहो, मॉनिटर करते रहो। अच्छा। फिर साथ साथ में एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। भले खा लिया, कैरी खा लिया, दूसरे दिन आप बाकी का खाना है उसमें कुछ रिस्ट्रेन करो। आज कैरी खाया तो शाम के खाने में कुछ कमी कर दो। अच्छा। तो आपका लेवल पर डे का मेंटेन रहना चाहिए। तो वही चीज़ें सबको अप्लाई होती है। ओके। हाँ, खाओ। कभी शादी में गए तो मिठाई भी खानी पड़ेगी। तो थोड़ा बैलेंस डाइट करके सब कुछ बैलेंस आपको करके आपको चलना है, हाँ, बैलेंस चलना करके चलना है। इरेटिक नहीं रहना है बहुत, रोज बार बार का खाया, डेली आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके खाया, ऐसा नहीं होता। वो तो फिर आपकी हेल्थ को खलास कर देगा। बाहर का अगर खाते भी हो तो ज़्यादातर आप दाल राइस। तो ये एक अच्छा डिस्कशन चल रहा था कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चले। लाइफ है, उसको एंजॉय तो करना ही है, लेकिन वो एंजॉयमेंट में इतने तो पागल नहीं हो जाना है कि भी आप अपना हेल्थ का भी ध्यान ना रखें। तो जो भी है आप लिमिट में करो। और लिमिट में करोगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप लाइफ का एंजॉयमेंट भी ले पाओगे। थैंक यू सर। और कैसा लगा आपको यहाँ आके? It was a very nice conversation. Thank you Mocktail Diaries. Thank you Kashmira for inviting me here. Basically हमारा इंटेंशन ये रहता है कि being a educated people, we should educate people. सो मैं बहुत बार अपने लोगों को भी समझाता हूँ, अपने टीममेट्स को भी समझाता हूँ, अपने कलीग्स को भी समझाता हूँ कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सी ही इज इग्नोरेंट और शी इज अनअवेयर, बीइंग ए पेशेंट। हम तो पढ़े लिखे हुए हैं, हाँ जी। तो दैट इज आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग इन डिटेल, आवर ड्यूटी टू गाइड देम इन डिटेल। जी।
उस हिसाब से हमारा जो ये प्रोसेस है लोगों को एजुकेट करने में, उसमें आपने जो कंट्रीब्यूट किया आज के एपिसोड के थ्रू, उसके लिए मैं और मेरी दोनों हॉस्पिटल की टीम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम भी आपको थैंक यू कहते हैं कि आप अपना कीमती समय और इतने सारे पेशेंट्स को थोड़ा साइड में रख के आप हमें इतना सब कुछ सिखाने आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।